Hi students, I am Binay Kumar Srivastav. You are watching my YouTube channel. Thanks for cooperation. How are you? I think all of you are fine. Now we should come to our topic. In previous video, we have discussed about the various important journal entries of partners of a partnership business. Now we will try to understand those journal entries with the help of an example. I framed this example and I already wrote the example, the question on the board. And after making you understand the question that has been written on the board, we will move to the solution and we will try to understand the journal entries one by one regarding the partners of a partnership business. Now, come to the question. The question is A and B are partners sharing PL ratio equally. A and B are partners, they are sharing profit or loss equally. As per the partnership deed, it shows that there is partnership agreement and not uh, as we can understand very easily that there is a partnership deed means partnership agreement, deed in partnership agreement in their business. These two partners are to get a salary of 24,000 and 20,000 per annum. Means A has to get as salary 24,000 and B has to get 20,000 per annum. Next is they also will get 10% per annum interest on capital, and their capitals are A's capital is 1 lakh rupees and B's capital is 50,000 rupees. They have also withdrew amount from the business and they have equally withdrew 60,000 each in a particular financial year in this financial year. Now, interest on drawings has to be charged by the business at the rate of 5% per annum. Gross profit for the year is 1,80,000 and next information, additional information has been given. Advertisement expenses 12,000, interest on age loan is rupees 8,000, and again I am saying that gross profit has been given as additional information and that is 1,80,000. Now come to our solution. First of all, we will try to understand the difference between gross profit and net profit. Actually, when only direct expenses is deducted from the figure of sales, then it will come gross profit. And if we, from the gross profit, we deduct indirect expenses as well, then we get the figure of net profit. Means what? If we subtract direct expenses from sale and plus add direct plus closing stock minus opening stock, then we will get the figure of gross profit. Sale, if you mainly you have to understand this. If you subtract direct expenses from the sale, then we get gross profit figure, and to get the figure of net profit, we have to subtract indirect expenses from the figure of gross profit. Now, it is quite clear. It means in the question, gross profit figure has been given 1,80,000. It means we have to adjust the indirect expenses from the figure of gross profit to get the figure of net profit. What are the indirect expenses that are to be adjusted according to the question? There are two indirect expenses: advertisement expenses and interest on his loan. These two items are to be adjusted. These are to be subtracted from the figure of gross profit. Then we get the figure of net profit. Okay, now it is quite clear. Now come to our journal entry. Start passing entry. First of all, we have to pass journal entry of advertisement expense. For advertisement expenses 12,000. How we can
do so, we will pass PL account debit to advertisement expense account. What is the figure of advertisement expenses? 12,000 and 12,000. Variation will be लिखे, statement will be written here. You can write by yourself. I am leaving the statement. Next, interest on each loan is to be provided, and as in the previous video, I already talked about the interest on each loan. Actually, this is a charge for the business. असल में हम यहाँ पे बात करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ए लोन जो है वो बिजनेस के लिए चार्ज है, और जब चार्ज होता है तो कोई भी पार्टनर से ही संबंधित क्यों ना हो, हम पीएल अकाउंट से ही एडजस्ट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन एज लोन को हम यहीं पर प्रोवाइड करेंगे, पीएल अकाउंट से एडजस्ट करेंगे, और उसके लिए जो जर्नल एंट्री होगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन। और क्वेश्चन में दिया हुआ है मेरा 8,000। इस एंट्री को करने के बाद हम बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि मेरा जो नेट प्रॉफिट का फिगर है वो कितना आया। अगर हम देखें तो शुरुआत में मेरा ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर था 1,80,000। नेक्स्ट इसमें से हम लेस किए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है जो कि 12,000 है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट सॉरी जो कि 12,000 है, और इसमें से घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे 8,000, तो हम लोग का जो नेट प्रॉफिट आएगा वो आ जाएगा 1,60,000। यही प्रॉफिट हमारा पीएल अकाउंट का लास्ट में आएगा, और इसी प्रॉफिट को हमको ट्रांसफर करना होगा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्यों? क्योंकि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, सैलरी अगर है तो पार्टनर को सैलरी भी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही देंगे। तो यहाँ पर मेरा नेट प्रॉफिट हो गया। अब इस नेट प्रॉफिट को हमको ट्रांसफर करना है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो जैसा कि हम जानते हैं तो कोई भी प्रॉफिट का जो बैलेंस होता है, चाहे ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस हो ग्रॉस प्रॉफिट का या पीएल अकाउंट में बैलेंस हो नेट प्रॉफिट का, वो बैलेंस जो प्रॉफिट का है वो हर समय क्रेडिट बैलेंस से शो करता है। और जब क्रेडिट बैलेंस है पीएल अकाउंट का बैलेंस को हमको ट्रांसफर करना है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो हम क्या करेंगे कि जो क्रेडिट बैलेंस है पीएल अकाउंट का उसको डेबिट कर देंगे और पीएल अप्रोप्रिएशन को क्रेडिट कर देंगे। अब यहाँ पर आ जाए हम पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, कितना से पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, तो अभी तुरंत हमने निकाला है। ग्रॉस प्रॉफिट में से ये दोनों इनडायरेक्ट एक्सपेंस को घटाए तो 1,60,000 आया। यही पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करेंगे। ये मेरा ट्रांसफरिंग एंट्री हो गया 1,60,000 और 1,60,000। नेक्स्ट जो मेरा एंट्री होगा वो होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड और सैलरी से रिलेटेड, और ये सारा कुछ और ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट या फिर लॉस से रिलेटेड, और जो कि हम कहाँ जाएंगे उसके लिए, तो वो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही हम उसको एडजस्ट करेंगे। तो हम जरा देखें इस एंट्री को। ओके, इसका मतलब अब क्लियर हो गया कि जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैंने जो बैलेंस ट्रांसफर किया था वो किया था 1,60,000। ये दिमाग में रखना है अभी, क्योंकि हम लोग लेजर नहीं बना रहे हैं, हम लोग को रफ कैलकुलेशन करना होगा। नेक्स्ट, अब हम आते हैं पार्टनर ए को सैलरी देना है 24,000, पार्टनर बी को 20,000 सैलरी देना है। क्या एंट्री हमने कल बताया था? पार्टनर्स salaries account
डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू पेज कैपिटल अकाउंट। कितना है, ए को कितना सैलरी देना है, उसका ए का कैपिटल को हम क्रिएट कर देंगे उतना से। ए को सैलरी देना है 24,000, इसलिए ए वाला में लिख देंगे 24,000 क्रेडिट तरफ, और बी को कितना देना है 20,000 पर एनम, तो बी वाला में लिख देंगे हम 20,000। अब जो पार्टनर सैलरी टोटल अगर देखें हम, तो 44,000 पार्टनर सैलरी हो रहा है, और ये पार्टनर सैलरी अकाउंट हम डेबिट कर दिए। यहां पर चाहे तो स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, पार्टनर्स सैलरीज अलाउड, यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं। और हम लोग 11 से ही पढ़े हैं स्टेटमेंट लिखना, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है, अब इस सैलरी को हमने बताया था कल पिछले वीडियो में कि सैलरी को अब हमको क्लोज करना है, ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर करना है, और ट्रांसफर कहाँ से होगा, तो पार्टनर से रिलेटेड है तो पीएल अप्रोप्रिएशन से होगा। और कैसे होगा, तो ये सैलरी अगर हम डेबिट किए हैं तो इसको हम क्रेडिट करेंगे और पीएल अप्रोप्रिएशन को क्रेडिट कर देंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन को डेबिट कर देंगे, सॉरी। यहां हम देखें तो टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट क्रेडिट और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। यहाँ पर हमने देखा, एक बात याद रखना है कि जो एक्सपेंस को हम ट्रांसफर करते हैं पीएल या पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो रिवर्स कर देते हैं। जैसे यहाँ पे पार्टनर्स के सैलरी को डेबिट किए हैं, हमको ट्रांसफर करना है इसको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो हम इसको रिवर्स कर दिए, क्रेडिट कर दिए और पीएल अप्रोप्रिएशन को डेबिट कर दिए। अब हम यहाँ आसानी से लिख सकते हैं 44,000 और 44,000। अगर हम स्टेटमेंट अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, पार्टनर्स सैलरी ट्रांसफर्ड टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे हमने देख लिया जर्नल एंट्री पार्टनर सैलरी से रिलेटेड, पीएल अप्रोप्रिएशन में फिर उसको हम ट्रांसफर कर लिए। नेक्स्ट जो पार्टनरशिप डेट बोलता है, वो कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% प्रोवाइड कीजिए। देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसा कि अभी तुरंत हमने बताया था, मैंने बताया था कि सैलरी एक्सपेंस है, उस तरह के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एक्सपेंस है, और हम जितना भी एक्सपेंस है उसको डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। कितना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ है 1 लाख रुपीज, और ए का और बी का दिया हुआ है 50,000, तो हम 1 लाख का 10% निकाल लेंगे, और पार्टनर बी का हम 10% 50,000 का निकाल लेंगे, जो कि आ रहा है 5,000। हम एक बात हर समय याद रखेंगे, तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि फर्दर कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है पार्टनर, तो हम लोग जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो कैलकुलेशन करते हैं, वो हर समय बिगनिंग जो बैलेंस है, एट द बिगनिंग ऑफ ईयर जो बैलेंस है, उसी पर इंटरेस्ट हम कैपिटल पर प्रोवाइड करते हैं पार्टनर्स को। यहाँ मेरा मानना है कि हम लोग का मानना है कि ए का जो 1 लाख रुपए जो कैपिटल शो कर रहा है बैलेंस, वो बिगनिंग है, ईयर के बिगनिंग का वो बैलेंस है, इसलिए डायरेक्ट मैंने 1 लाख का 10% निकाला है, और दैट कम्स 10,000 रुपीज। Next is 50,000. The beginning balance of the base capital is rupees 50,000. Our assumption is that it is the beginning balance of the capital. This is 50,000, और इसका हम 10% निकालेंगे, तो ये आ गया आपका 5,000। तो बिजनेस पर कितना का एक्सपेंस का लोड आया, तो वो आया तुम्हारा 15,000 का। इसको ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे।
अब दूसरा जो सिचुएशन अब मेरे पास आया, दूसरा जो जर्नल एंट्री हमको पास करना होगा वो एक्सपेंस है, इसको हम ट्रांसफर करेंगे इस, और ट्रांसफर कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, तो फिर हम बात एक बार और रिपीट कर रहे हैं कि पीएल अकाउंट से कोई संबंध नहीं, इसका पीएल अप्रोप्रिएशन से जाएगा, क्योंकि ये कुछ नहीं, चार्ज नहीं है, बल्कि ये केवल प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन है। सो ये जो डेबिट किए हैं इसको हम कर लेंगे क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। ये आपका हो गया 50,000 50,000। इसका क्लियर हो गया। एक बात हम बार बार बोल रहे हैं कि एक्सपेंस जब भी डेबिट करें तो उसको क्रेडिट करके ट्रांसफर हम कर देंगे फाइनल अकाउंट में, जैसे पीएल अप्रोप्रिएशन या पीएल अकाउंट में। ये एंट्री क्लियर हो गया। नेक्स्ट मेरे पास है पार्टनर ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर इज ₹60,000 ईच। दोनों पार्टनर मिलके 60,000 का पैसा बिजनेस से निकाला है, यानी ए भी निकाला है 60,000, बी भी निकाला है 60,000। हम लोग इसका एंट्री यहाँ नहीं करेंगे, हम लोग सीधा आते हैं कि इस पर ड्राइंग देना, इंटरेस्ट चार्ज करेगा बिजनेस। ये ड्राइंग जो दोनों ने किया है 60,000 का, इस पर बिजनेस कह रहा है, चूंकि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, तो यहाँ पर ड्राइंग पर इंटरेस्ट बिजनेस चार्ज करेगा। कैसे चार्ज करेगा, क्या अमाउंट होगा चार्ज करने का, इसको भी जरा हम समझें। क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए बिजनेस से निकाला है 60,000 और बी निकाला है 60,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों को 5% है, दोनों से चार्ज करेगा बिजनेस 5%, लेकिन कब ड्राइंग किया है ये पता नहीं है। तो हमारा एजम्पशन होगा कि वो हर एक मंथ के मिडिल में ड्राइंग किया है, और हर एक मंथ के मिडिल में जब भी करेगा तो हम 6 मंथ का ही केवल इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 6 मंथ और ये 6 मंथ। यानी कि अगर हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया होगा डेट ऑफ ड्राइंग, मंथ ऑफ ड्राइंग, तो हमारा जो ईयर जो पीरियड होगा इंटरेस्ट का निकाल कैलकुलेट करने का, वो आपका आएगा 6 मंथ का, 6 मंथ का। यानी कि ये एकदम क्लियर हो गया कि अगर एक अगर इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग निकालना होगा तो इसको हम निकाल पाएंगे, इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग 60,000 इंटू 5% इंटू 6/12, और ये आपका आ रहा है 1,500। ओके, तो 1,500 ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और 1,500 बी का ड्राइंग। यहाँ पर अब एंट्री जरा पास करें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है, और जितना भी इनकम होता है वो सारा जो है क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर हम कर लेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग is capital. Who will bear the amount of drawing? The partner will bear the amount of drawing. Age capital, A से कितना लेना है ड्राइंग का इंटरेस्ट 1,500, और बी से लेना है 1,500, और दोनों को ऐड करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो इनकम होगा बिजनेस का वो हो जाएगा आपका 3,000। ये एंट्री क्लियर हो गया। अब ये इनकम है, तो इनकम को हम बताए हैं कि पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना होगा। तो ये जो क्रेडिट हम किए हैं इसको डेबिट कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 3,000 एकदम क्लियर हो गया। और हमारे क्वेश्चन के मुताबिक कुछ भी रिक्वायरमेंट अब बचा हुआ नहीं है, लेकिन एक चीज बचा हुआ है कि हम लोग को जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है उसको फाइंड आउट करके हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर हम गौर करें, अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट अगर निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं,
हमने अभी तुरंत डिराइव किया था फिगर 1,60,000 नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट में से हम घटाएंगे जो जो एक्सपेंसेस हमने किया है। सैलरी हमने दिया था 44,000, दोनों पार्टनर का मिला के सैलरी 24,000 प्लस 20,000, ये 44,000, इसको अगर घटाएं तो ये हो गया आपका 1,16,000। फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है पार्टनर्स को, तो ये आपको घटाना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये आपका आ गया था 15,000। रिमेनिंग जो प्रॉफिट हुआ 1,01,000, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए इनकम हो गया 3,000, तो इसको हम ऐड कर लेंगे प्रॉफिट में, तो ये हमने ऐड किया 3,000, ये टोटल आपका हो गया 1,400। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। और इस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हमारे पास है 1,04,000। ये सारा घटाने के बाद यही डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे करेंगे, किस रेशियो में करेंगे, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है पीएल रेशियो में करना है और इक्वली करना है। अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया रहता तो हम अपने मन से, चूंकि अभी हम पढ़े हैं कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक अगर पीएल रेशियो पर कुछ भी अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो सारे पार्टनर्स को इक्वली ही दिया जाता है प्रॉफिट और लॉस का शेयर। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में तो दिया हुआ है तो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे करेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन का कौन सा बैलेंस शो कर रहा होगा, हम अभी तुरंत देखें तो 1,04,000 प्रॉफिट का बैलेंस बचा हुआ है पीएल अप्रोप्रिएशन में। तो निश्चित रूप से पीएल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट अगर बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस शो होता है। जितना भी प्रॉफिट का बैलेंस शो करेगा अकाउंट्स वो क्रेडिट बैलेंस शो करता है। तो इस क्रेडिट बैलेंस को ट्रांसफर करना है। कैसे करेंगे, तो जो पीएल अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है 1,04,000, तो पीएल अप्रोप्रिएशन को डेबिट कर देंगे। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 1,04,000 और पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बीज कैपिटल को भी हम क्रेडिट कर देंगे। कितना से, तो इक्वली 52,000 एंड 52,000। ये आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हम एक चीज क्लियर हो गया है हम लोग को कि जर्नल एंट्री कैसे हम पास करेंगे, ये सारे से रिलेटेड। और उसके बाद हम कैसे जर्नल एंट्री बनाए, उसके बाद हम देखेंगे कि पीएल अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। ओके।